ओके ओके ठीक है. Hello dear students, this is Ikhlaq sir, physics. So I am back with the lecture number 2 on one shot. Okay, so NLM second one shot, target is NEET 2025. Okay, ठीक है बेटा. So let's move ahead. तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? We'll start from the friction chapter. Okay, the basic terms here. Number one is how we define force of friction. Okay, so how we define force of friction. यहां पे ध्यान रखिए बेटा. Force of friction, it is simply defined as a contact force. First and foremost, it's a contact force. What does that mean? It's a contact force. It means that the force of friction will exist only if there is contact with the two surfaces. ठीक है ना बेटा? If the physical contact does not exist, force of friction does not exist. All right? That resists relative motion. Important is this relative motion. It resists relative motion, not the motion between two surfaces in contact, and obviously force of friction is always directed parallel to the plane of contact. Normal reaction is perpendicular to the plane of contact, and force of friction is always parallel to the plane of contact. ठीक है? So it is not necessary that the friction opposes motion. ये भी है, ठीक है ना? Because suppose that you are walking, okay, towards right, so that means the force of friction acting on you is also towards right. It is because of the force of friction that you are able to move in the direction of the towards right or towards left, whatever. Next देख लीजिए बेटा, static friction, force of friction between two surfaces that don't have relative motion between, but tend to have relative motion. ठीक है ना? That's called as what? Static. I will explain it. I'll explain it. देख लो बेटा. Next क्या है? That the static friction is a self-adjusting force. What does that mean? That means the value of Fs, it depends on the value of capital S. Here I will write down that the static friction depends on its value जो है बेटा, that depends on the external force that's equal to capital F. ठीक है? What does that mean? That means, for example, capital F is equal to 0 Newton, then the static friction will be also equal to 0 Newton. As you increase the value of capital F, the static friction will also increase. Its value will be equal to the capital F. But it will not increase its value endlessly. It will increase its value only up to a certain limit. That's what we call as limiting friction. ठीक है बेटा? Okay, तो limiting friction है क्या? It is the maximum value of the static friction is called as limiting friction, denoted by this. And what about kinetic friction? Force of friction between two surfaces when there is relative motion between the two surfaces, that's called as kinetic friction. और जो kinetic friction है बेटा, it is not a self-adjusting force. ठीक? Now, with the help of one example, I will explain each of these. What we mean by the static friction and kinetic friction and all that. देख लो बेटा, concentrate here. मान लीजिए बेटा, this is for example horizontal surface and this is a block on the horizontal surface. ठीक है बेटा, this is a block. ठीक? Now, what you do is that you will apply the force in the forward direction, F. So obviously in the backward direction there will be force of friction. Clear बेटा? ठीक है? Now I am going to explain what we mean by saying that static friction is a self-adjusting force and kinetic friction is not a self-adjusting force. देख लीजिए बेटा. First and foremost, if for example this capital F it's equal to 0 Newton, then in that very case this block will be at rest, means that net force will be equal to 0. So if the forward force is 0 Newton, तो पीछे की दिशा में कितना force होगा बेटा? Obviously 0 Newton. So this will be equal to 0 Newton, and this is what you call static friction. Now what you are going to do is this. यहाँ पे ध्यान रखो बेटा. Capital F for example it's equal to 2 Newton. For that matter, I'll first of all let's suppose that जो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लीजिए बेटा इट्स इक्वल 10 न्यूटन. सपोज दैट कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन? दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. इसका मतलब क्या है? ये फोर्स किसके बराबर बेटा? 2 न्यूटन. सो व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हियर? दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन. दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड द ब्लॉक, जो ये ब्लॉक होगा, इट विल बी एट रेस्ट, इट विल नॉट एक्सेलरेट. ठीक है? लेट्स इंक्रीज दिस कैपिटल F टू 5 न्यूटन. जब ये 5 न्यूटन होगा, the static friction it can adjust its value up to the limiting friction of 10 न्यूटन. तो उस वक्त static friction किसके बराबर होगा? That will be also equal to 5 न्यूटन. Again the block will be at rest. अब आप देख लो बेटा, static friction, the value of capital F is increasing, the value of static friction is also increasing. Now let's suppose the capital F it's equal to 10 न्यूटन. किसके बराबर है बेटा? ये 10 न्यूटन. What about the static friction? It will be also equal to 10 Newton. Again, the block will be at rest. Clear or not?
ठीक है बेटा, बट द स्टैटिक फ्रिक्शन इट विल एडजस्ट इट्स वैल्यू ओनली आफ्टर, फॉर एग्जांपल इन दिस वेरी केस आफ्टर 10 न्यूटन। तो ये कहां तक वैल्यू एडजस्ट करेगा? आफ्टर 10 न्यूटन। नाउ लेट्स इंक्रीज दिस वैल्यू, दिस कैपिटल F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, दिस इक्वल 15 न्यूटन। क्या ये इंक्रीज करेगा वैल्यू? नो, इट विल नॉट इंक्रीज द वैल्यू। इसके बाद क्या होगा बेटा? नाउ द ब्लॉक विल बी इन मोशन, now the block will be in motion, clear or not? And when the block will be in motion, so this friction is called as what we call as limiting friction. And when the block will be in motion, what does that mean? That means the force of friction there will be what? That will be kinetic in nature, ठीक है बेटा। तो kinetic friction उसके बाद है, for example that kinetic friction is equal, that will be less than limiting, that's equal suppose 8 न्यूटन। किसके बराबर है बेटा? 8 न्यूटन। Now let's increase the value, F is equal to 20 न्यूटन। Again the block it will be in motion, it will accelerate। तो जो यहां पे फ्रिक्शन होगा बेटा, that will not increase beyond this, तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? that will be equal to what? 8 न्यूटन, that will be equal to 8 न्यूटन, clear or not? So इस एग्जांपल से हमें ये पता चला बेटा, that the static friction is self adjusting force, its value is simply equal to what? Capital F, ठीक। it will adjust its value depending upon the value of capital F, but only up to a certain limit, and that certain limit is what we call as limiting friction। फिर उसके बाद then after that what will happen is that the block will move, and when the block will move, the force of friction there will be what? Kinetic in nature। and kinetic friction is a constant force, it is not a self adjusting force, its value does not depend upon capital F। okay, so I'm sure आपको ये clear हुआ होगा, ठीक है। so let's move ahead, देख लो बेटा। next is what are the expression, what are the mathematical expressions for the limiting friction, for the static friction, for the kinetic friction, ठीक है बेटा। due to which what we can calculate is that if we want to calculate, अगर हमें निकालना होगा limiting friction, तो हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए with the help of which we can calculate limiting friction। अगर हमें निकालना है static friction, उसके लिए भी एक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हमें निकालना है बेटा kinetic friction, उसके लिए भी एक इक्वेशन होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए बेटा, limiting friction first and foremost it is directly proportional to normal reaction, it's obvious। देखो बेटा, you have notes at your home, for example अगर आपके पास दो ब्लॉक्स है बेटा, एक है लाइटर ब्लॉक, दूसरा है हैवियर ब्लॉक। it is very easy to move a lighter block and it's very difficult to move a heavier block, क्योंकि heavier block में क्या होता है? normal reaction ज्यादा होता है, तो force of friction भी ज्यादा होगा, that is why it is difficult to displace a heavier block compared to a lighter block, ठीक है। so important point here is this, that the limiting friction is directly proportional normal reaction। constant of proportionality होता है बेटा mu s, क्या होता है बेटा? mu s। and what is this mu s called? here I will write down, mu s is called as coefficient of static friction, coefficient of static friction, it's the coefficient of static friction। what about this mu k? ये mu k क्या है बेटा? it is coefficient of kinetic friction, it is coefficient of kinetic friction, ठीक है बेटा। mu s is coefficient of static friction and mu k यहां पे है, it is coefficient of kinetic friction, ठीक है। so limiting friction it is directly proportional normal reaction, यहाँ पे constant of proportionality है बेटा mu s। then static friction since it is self adjusting, इसका मतलब है बेटा it can adjust its value from 0 to the limiting friction, so its value will always lie between 0 and limiting friction, it is less or equal to limiting friction। limiting friction किसके बराबर है? mu s multiplied by n, ठीक है। kinetic friction किसके बराबर है बेटा? that's again directly proportional to normal reaction, so the constant of proportionality there will be mu k, and what is this mu k? it is the coefficient of kinetic friction, ठीक है बेटा। mu s is the coefficient of static friction and mu k is the coefficient of what? that is kinetic friction, ओके बेटा। तो यहां पे ध्यान रखिए बेटा, so here let me write it here, यहां पर मैं ये लिख के रखूंगा बेटा, let me write it here, this mu s and mu k। what is this mu s? it is the coefficient of what? static friction, coefficient of static friction, ठीक है बेटा। and what about this mu k? mu k is coefficient of kinetic friction, this is coefficient of kinetic friction, ठीक है ना बेटा। अब यहां पे देख लो बेटा ये एग्जांपल, this block it's about to slide, it's at the verge of sliding, this capital F is this, तो पीछे की दिशा में जो फ्रिक्शन होगा बेटा that's limiting friction and this is equal to what? mu s multiplied by n, ठीक है। now in this very case this F it is larger than this force, ठीक है, तो ये चलेगा when it will move in the backward direction there is kinetic friction, और ये kinetic friction किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा mu k multiplied by n, alright, where mu k is called coefficient of kinetic friction। आगे चलते हैं बेटा, देख लो concentrate here, there are some important points जो हमने यहां पे लिखे हैं। so important point number first is this,
म्यू एस एंड म्यू के जो है बेटा दे आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज एज सच नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया है बेटा. Why they are unitless and dimensionless? The reason is simple. For example, आपको म्यू एस देखना है या म्यू के देखना है, that is force of friction divided by normal reaction. ठीक है बेटा, तो force of friction is a force and normal reaction is also a force. Newton and Newton will cancel, hence it is what? A unitless and dimensionless physical quantity. ओके बेटा, सो म्यू एस एंड म्यू के व्हाट आर दैट? दे आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बेटा, बिकॉज इट्स सिंपली न्यूटन बाय न्यूटन, दैट विल कैंसल. ठीक है, सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2. आप देख लो बेटा, वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू के. जो इसका वैल्यू है बेटा, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? दैट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट. दैट मींस द मटेरियल, द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द रफनेस ऑफ द सरफेसेस. सिंपल सी बात है बेटा. फॉर एग्जांपल, इफ यू चेंज द nature of the material, the force of friction will change. Okay, ठीक. So mu s and mu k both are always less than 1. They are always less than 1, and mu k is less than mu s. Very important point. Mu k is less than mu s. ठीक है बेटा. It is for this reason that the coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. Because of this, it's always easy to keep a block moving than to start it. ठीक, तो वो हमने यहां पे लिखा बेटा, दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ ब्लॉक देन टू कीप इट मूविंग. ठीक, देन मोर द वैल्यू ऑफ द म्यू, मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड वाइस वर्सा. ठीक है बेटा. फॉर एग्जांपल, म्यू इज इक्वल टू 0.5 और 0.6. व्हेन द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.6, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.5, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा. दैट्स ऑब्वियस. ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, दिस म्यू के विल बी ऑलवेज लेस देन म्यू एस. व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट? काइनेटिक फ्रिक्शन. दैट इज व्हाई फॉर एग्जांपल, व्हेन वी विल स्टार्ट द ब्लॉक, it is very difficult to start a block. Once it starts, then it becomes easy to keep it moving. The reason is that when it moves, the force of friction there will be kinetic, which is less in magnitude, and when it's about to slide, the force of friction there will be what? That will be limiting, which is greater than the kinetic friction. ठीक है, तो misconception यहाँ पे ये है बेटा, that this kinetic friction is less than static friction. This is absolutely a wrong statement. ठीक है, we can never compare the kinetic with the static. They cannot be compared. Why they cannot be compared? Because kinetic का वैल्यू होता है constant, static का वैल्यू constant नहीं होता है. Suppose limiting friction is equal. Let's suppose देख लो बेटा. For example, limiting friction is equal to 8 Newton. Let's suppose. ठीक है ना. Kinetic friction जो है that's equal to 5 Newton. Let's assume like this. ठीक. So that kinetic friction is less than the limiting friction. अब जो static friction है बेटा, its value will always lie between 8 Newton and 0 Newton. Its value can lie between 0 Newton and 8. Its value can be from 0 Newton to 8 Newton. ठीक. So we can never compare static with the kinetic, but we can always say that the static is less or equal to what? Limiting friction. क्योंकि कभी static 8 Newton हो सकता है, which is greater than the kinetic, लेकिन कभी static 4 Newton भी हो सकता है, which is less than the kinetic. ठीक. So we cannot compare the static with the kinetic. The wrong statement here is that static friction is greater than the kinetic friction. The right statement is that the limiting friction, which is the maximum value of the static friction, is always greater than the kinetic friction. ठीक है. Then point number 9 is we have plotted the force of friction versus the capital F graph. When the external force is equal to 0, बोलो बेटा फ्रिक्शन कितना होगा? 0. कैपिटल F इक्वल टू 0, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट्स इक्वल टू 0. नाउ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल F, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल आल्सो इंक्रीज अप टू अ सर्टेन वैल्यू व्हाट वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है ना बेटा. देन देयर आफ्टर जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचेगा बेटा, देन एट दैट वेरी पॉइंट द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड. इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, एंड व्हेन इट विल स्लाइड, देन इन दैट वेरी केस what friction comes into existence is the kinetic friction. और जो kinetic friction होता है that is always less than the limiting friction, and then it remains constant. This is kinetic friction whose value is always constant. ठीक है बेटा. This is what we call as limiting friction. इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? इट्स इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन. इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन. एंड दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मींस दैट इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ. इट विल बी इक्वल टू रादर कैपिटल एफ, और जो एंगल यहां पे होगा ये होगा 45 डिग्री. ठीक है ना बेटा. आगे चलते हैं. Next, have a look. Another important point, and that is like this. Now, there are two contact force which we are discussing. Number one is that the normal reaction is a contact force, always perpendicular to plane of contact. Force of friction is a contact force, always parallel to the plane of contact. ठीक है बेटा. तो देख लीजिए यहाँ पे, concentrate here.
This is normal reaction which is perpendicular. This is the plane of contact, and see that normal reaction is perpendicular to the plane of contact, and friction is along the plane of contact. The angle between them will be always 90 degree, always 90 degree. ठीक है बेटा, तो एक्सटर्नल फोर्स हमने यहां से लगाया, सो दिस ब्लॉक विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की दिशा में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है बेटा दैट एफ एंड एन दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इंडीड दे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज एफसी। The resultant contact force here will be what? That will be FC. That's FC, resultant contact force. And what about angle of friction? How we define that? Angle of friction is always defined as the angle between the normal reaction and the resultant contact force. So it is the angle between the N and FC. Okay. Now what we have to calculate here is the expression for the contact force, resultant contact force, number one. Number second is that we have to derive the relation for the angle of friction, that is theta. तो आराम से हम यहाँ से कर सकते हैं बेटा, this we have used what? Pythagoras theorem, PGT, ठीक है, which is hypotenuse is equal to under root of base square plus perpendicular square. इसका जो बेस है बेटा that's f, so f square, perpendicular is m, so m square. f के बदले हमने क्या लिखा? mu n, तो ये बनेगा बेटा mu square m square. यहाँ इन दो में से m square कॉमन लिख सकते हैं बेटा, we can write it like this, m square कॉमन, तो बचेगा क्या? mu square plus 1, then n square, keep it out of this, so it will be n into root of under root of mu square plus 1. ठीक है, tan theta you want to define, that is perpendicular, which is this f divided by base, which is this n. ठीक है, so it's equal f by n. f के बदले हमने क्या लिखा? mu n, n and n will cancel, so this is theta is equal to tan inverse of mu. So this equation gives you angle of friction, and this first equation gives you the resultant contact force, and equation number second gives you what? Angle of friction. Clear? So I'm sure this is clear to you. Okay, now we'll go with the examples. ठीक है बेटा, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे basics of the friction, so I'm sure that each point is clear to you. ठीक, now let's go with the examples. So example number type first here is that motion of a block on the rough horizontal surface. NLM first में हमने पढ़ा था motion of a block on the smooth horizontal surface where force of friction was equal to 0, but in this very case there will be force of friction. ठीक है, now what is the generalized way to solve these problems? Generalized technique is this. Step number first आपको calculate क्या करना है बेटा? You will have to calculate what is limiting friction equal to. ठीक है, once आपने limiting friction निकाला, उसके बाद इस limiting friction को capital F से compare कर लो बेटा. ठीक है, if for example this capital F it is less or equal to the limiting friction, then in that very case क्या होगा? Block will be at rest. जब block rest पे होगा तो उस वक्त net force होगा 0. That means capital F will be equal to the force of friction. Static friction will be equal to capital F, and block will be at rest, means acceleration will be equal to 0. And if for example the external force is greater than the limiting friction, तब क्या होगा बेटा? तब ये होगा that the block is in motion, and when it is in motion that means the force of friction जो वहां पे बनेगा that will be kinetic, और acceleration किसके बराबर होगी? That will be equal external force, चलाने वाला force, this will become रोकने वाला force divided by total mass. यहाँ ऐसे लिख भी सकते हो बेटा, it is चलाने वाला force minus रोकने वाला force divided by the mass of the block. This is the equation to calculate the acceleration. ठीक है बेटा, and these steps will be even more clear when we'll do the examples. So let's do the examples. देख लो बेटा, concentrate here. Example number 1 is a bit confusing and most of the students give a wrong answer to this. देखो बेटा क्वेश्चन है क्या? A block of mass 10 kg is placed on a horizontal surface of coefficient of friction 0.2. Force of friction on the block is, you will have to calculate what is the force of friction. देखो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, you will first and foremost आप एक ब्लॉक बनाओगे. ठीक है, बनाया, इसका मास क्या है बेटा? That is equal to 10 किलोग्राम. बताइए इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नीचे की दिशा में है बेटा वेट 10 into 10 is equal to 100 न्यूटन. अपवर्ड्स क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन ये भी किसके बराबर आएगा? 100 न्यूटन के बराबर, because upward force will be equal to what? Downward force. Now in the backward direction there will be a force what we call as, there will be friction. For example आप ऐसे निकालोगे बेटा, friction is equal to mu multiplied by n. तो म्यू किसके बराबर है? म्यू वहां पे दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 0.2. तो यहाँ पे आपने लिखा 0.2 और नॉर्मल लिखा 100, तो इसका आंसर निकला बेटा 20 न्यूटन. क्या वहां पे कोई ऑप्शन है 20 न्यूटन? पहला ऑप्शन है 20 न्यूटन, आपने टिक दिया और ये गलत हुआ बेटा. ठीक है ना, तो यहां पे आप ध्यान रख लो बेटा. सो दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी, कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी.
This completely a wrong method to do it. Why? The reason is, देखो बेटा, simply a block is placed on the horizontal surface. When it's placed on the horizontal surface, क्या वहां पे mention किया गया है there is an external force? No, not at all. When there is no external force, तो friction होगा ही नहीं. ठीक है. So simply in this very case the external force that's equal to 0 Newton. तो इसमें जो force of friction होगा that will be equal to capital F, which will be equal to 0 Newton. As simple as that. ठीक है ना. तो पूरा ये तो गलत है. ठीक है, तो ये हटाएंगे यहां से. ठीक, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं बेटा. ठीक है. सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एट ऑल, तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. तो इसका जो सही आंसर है बेटा दैट इज दिस वन, दैट इट इज बी पार्ट व्हिच इज 0 न्यूटन. ऑलराइट, देख लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इट्स लाइक दिस. Okay, so this is a block, coefficient of friction is given, external force is 20 Newton. What you are supposed to calculate is the force of friction and the acceleration. अब देख लो बेटा, what is the way to do this? Step number first, calculate limiting friction. Once you are done with the limiting friction, compare it with the capital F. अगर capital F limiting friction से ज्यादा हुआ तब accelerate करेगा. अगर इससे कम या इसके बराबर हुआ तब क्या होगा बेटा? It will not accelerate and the आगे वाला force will be equal to the पीछे वाला force. As simple as that. देख लो बेटा, concentrate here. तो step number first क्या बोला मैंने बेटा? Calculate limiting friction. अब ये limiting friction किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा म्यू इंटू एम. सही है सर. यहां पे जो नॉर्मल डायरेक्शन आएगा वो आएगा mg, बिकॉज अपवर्ड्स देयर इज नॉर्मल, और नीचे की दिशा में कौन सा फोर्स होगा? दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी. ठीक, तो ये क्या निकला बेटा? दिस इज 0.3. व्हाट अबाउट द मास ऑफ द ब्लॉक? दैट इज 10. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10. 0.3 इंटू 10 इज 3. 3 10 आर 30 न्यूटन. तो ये निकला 30 न्यूटन. नाउ कंपेयर दिस विद द कैपिटल एफ. आप देख लो बेटा, वहां पे जो कैपिटल एफ है दैट इज 20 न्यूटन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा? 30 न्यूटन. सो कैन आई से लाइक दिस दैट दिस कैपिटल एफ इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. When it is less than limiting friction, what does it mean? It means that the block is at rest. Block is at rest. और जब block rest पे होता है, बताइए बेटा इसकी acceleration क्या होगी? Obviously 0. So the acceleration will be equal to 0. And what about force of friction? तो आगे वाला फोर्स होगा बेटा पीछे वाला फोर्स. तो पीछे की दिशा में जो फ्रिक्शन होगा that will be static in nature, will be equal to capital F, which is equal to 20 Newton. तो यहां मैं लिखूंगा बेटा static friction will be equal to what? That's equal to 20 Newton, not 30 Newton. ठीक है, यहां पे जो 30 न्यूटन है इसका मतलब है अगर आप इस कैपिटल F को बढ़ाते जाओगे अप टू 30 न्यूटन, then block will be remain at rest at 30 Newton. When the capital F will be equal to 30 Newton, the block is about to slide. It is just going to slide. ठीक है, जो ही आपने 30 न्यूटन से फोर्स ज्यादा किया, then in that very case it will move in the forward direction. It will accelerate. All right? ओके, तो देख लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटा. नाउ लेट्स सपोज दैट देयर आर टू कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच आर गिवन टू अस. दिस इज म्यू एस और यहां पे मैं लिखूंगा बेटा म्यू के बी दैट्स इक्वल टू 0.2 सपोज, एंड म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस. ठीक है ना. अब क्वेश्चन है क्या? व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट इज अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन. क्या करोगे आप? स्टेप नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट एफ लिमिटिंग. लेट्स कैलकुलेट एफ लिमिटिंग. वो किसके बराबर होता है? म्यू एस एन. यहां पे नॉर्मल किसके बराबर है बेटा? एम जी के बराबर. लगाइए बेटा वैल्यू. म्यू एस किसके बराबर है? दैट इज 0.3. व्हाट अबाउट द मास ऑफ द ब्लॉक? दैट इज 10. व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? दैट इज 10. तो ये निकलेगा बेटा 30 न्यूटन. हाँ सर, ये 30 न्यूटन निकला. अब एक्सटर्नल फोर्स देख लीजिए बेटा, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स है 60 न्यूटन. सो कैन आई से लाइक दिस दैट दिस कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन? यस वी कैन से. इट इंप्लाइज दैट ब्लॉक जो है बेटा, ब्लॉक विल बी इन मोशन. दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर? जब ब्लॉक चलेगा तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, क्या वो स्टैटिक होगा या क्या वो काइनेटिक होगा? सर वो तो काइनेटिक होगा क्योंकि ब्लॉक इज इन मोशन. देख लीजिए बेटा. सो लेट्स कैलकुलेट द काइनेटिक फ्रिक्शन. अब काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? म्यू के इंटू एम, विच इज म्यू के मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एम जी. हाँ बताइए म्यू के का वैल्यू क्या है? 0.2. व्हाट अबाउट मास ऑफ द ब्लॉक? दैट इज इक्वल टू 10. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? दैट इज 10. तो ये आएगा बेटा 20 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. ओके, नाउ एक्सेलरेशन अब इसमें कैलकुलेट करना है बेटा. सो वी आर डन विद द ए पार्ट एंड बी पार्ट दैट यू हैड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. वो आएगा बेटा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास. अब इसमें देख लो बेटा, चलाने वाला फोर्स है बेटा ये 60 न्यूटन. दिस इज द चलाने वाला फोर्स.
पीछे की दिशा में एक फोर्स है बेटा, व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन किसके बराबर निकला? वो निकला बेटा 20 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन आप आराम से निकाल सकते हो। व्हाट इज चलाने वाला फोर्स हियर? दैट इज 60 माइनस रोकने वाला फोर्स कितना है बेटा? दैट इज 20। व्हाट अबाउट द टोटल मास? दैट इज इक्वल टू 10। 60 माइनस 20 इज 40 by 10 is equal to what? 4 meter per second square will be the acceleration of the block. 4 meter per second square will be the acceleration of what? That will be the acceleration of block. अब कभी ये हो सकता है बेटा, फॉर एग्जांपल आपको अलग अलग वैल्यूज नहीं दिए गए हैं, ओनली वन वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवन। इट्स नॉट दैट म्यू एस एंड म्यू के आर सेपरेटली गिवन, सिर्फ एक वैल्यू दिया गया है। तब आप क्या करोगे बेटा? इफ इट मूव्स यूज द सेम वैल्यू ऑफ म्यू, इफ इट्स एट रेस्ट यूज द सेम वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है ना? अदरवाइज इफ इट इज फॉर एग्जांपल मेंशन इट इज म्यू एस एंड म्यू के, देन इफ फॉर एग्जांपल you want to calculate limiting friction, then use mu s, and if you want to calculate kinetic friction, अगर ब्लॉक चलेगा तो kinetic friction होगा, so then you will have to use what? mu k multiplied by n. Okay, so I'm sure that example number 1, 2, 3 is clear. अब देख लो बेटा example number 4. In the example number 4, again there is a block which is placed on a rough horizontal surface. mu दिया गया है, but the force here that's not horizontal, that is at an angle with the horizontal. So step number first, what you will do is that you will try to resolve this f into the rectangular components. ठीक है बेटा, तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स। यहां पे मैं लिख के रखूंगा बेटा that sin 37 डिग्री ये किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा 3 divided by 5। cos 37 डिग्री ये किसके बराबर होता है? ये होता है 4 divided by 5। तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी 100 cos 37। cos 37 is 4 by 5, तो ये निकलेगा बेटा 80 न्यूटन। ये वाला कंपोनेंट आएगा बेटा 100 sin 37। sin 37 होता है बेटा 3 by 5, तो ये आएगा बेटा 100 into 3 divided by 5 which is equal to what? 60 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर की दिशा में एक फोर्स होगा, व्हाट इज दैट? नॉर्मल रिएक्शन। डाउनवर्ड्स देयर विल बी अ फोर्स m into g, 10 times are 100 न्यूटन। पीछे की दिशा में एक फोर्स होगा बेटा, व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय m। ठीक, सो स्टेप नंबर फर्स्ट कैलकुलेट m, स्टेप सेकंड कैलकुलेट फ्रिक्शन, स्टेप थर्ड कैलकुलेट एक्सेलरेशन। दैट इज हाउ टू गो अबाउट इट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे बेटा? इसमें आपको क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन इज सिंपली लाइक दिस, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। यू विल हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? ए पार्ट दैट, लेट्स कैलकुलेट नॉर्मल। So upward force will be equal to what? Downward force. Upward force equal to downward force. सही है बेटा? हम बताइए upward force कितना है? n and 60। तो क्या लिखेंगे बेटा? n plus 60। downward force किसके बराबर है? That is 100। 100 minus 60 is equal to what? 40। तो 40 न्यूटन क्या निकला बेटा? वो निकला नॉर्मल रिएक्शन। Once this is done, then calculate the friction. वो किसके बराबर है? mu into n. What is the value of mu? 0.2 into 40. 4 2s are 8. ये आएगा बेटा 8 न्यूटन। क्लियर? Now in this very case, this 80 न्यूटन बनेगा बेटा चलाने वाला फोर्स। ये जो 80 न्यूटन है, this is the चलाने वाला फोर्स। ठीक है? और यहां पे जो फ्रिक्शन निकला वो कितना निकला बेटा? वो निकला 8 न्यूटन। और ये 8 न्यूटन क्या है बेटा? ये है रोकने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स। ठीक है रे बेटा? नाउ इजीली वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, सो लेट्स डू दैट। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहां पे हम a निकालेंगे बेटा। लेट्स कैलकुलेट एक्सेलरेशन हियर। दैट इज इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ब्लॉक। बताइए बेटा इसमें चलाने वाला फोर्स कितना है? दैट इज 80। बताइए बेटा इसमें रोकने वाला फोर्स कितना है? दैट इज 8 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल मास? दैट इज 10। Acceleration comes out to be what? 7.2 meter per second square will be the acceleration of this block. All right? ठीक है ना बेटा? तो क्या हमने किया? First resolve f in the rectangular components. Calculate n, upward force equal to downward force. Calculate friction mu into n. Then acceleration will be equal to external force along the x-axis minus the force which is along the negative x-axis divided by the mass of the block. तो ये निकलेगा बेटा 7.2 meter per second square. ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, 10 किलोग्राम म्यू इज 0.2। ठीक है? थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या करना है। यहां पे फोर्स आप लीजिए बेटा, दैट इज 100 न्यूटन। तो इस 100 न्यूटन के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2। ये वाला कंपोनेंट आएगा बेटा 80 न्यूटन, ये वाला 60 न्यूटन। अपवर्ड्स होगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की दिशा में होगा बेटा mg which is 10 times are 100 न्यूटन। आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? यू विल हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। So it will accelerate in the forward direction. All right. Again, upward force equal to downward force. Upward force equal to downward force.
अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। बताइए ऊपर की दिशा में कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। नीचे की दिशा में 160। तो क्या लिखेंगे बेटा? N इज इक्वल टू 100 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 160 न्यूटन। कैलकुलेट फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है बेटा? 0.2 इंटू 160। तो ये आएगा बेटा 2 इंटू 16 इंटू 32। तो ये आएगा बेटा 32 न्यूटन। ये 32 न्यूटन इसका क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा इसका रोकने वाला फोर्स। ये बनेगा बेटा रोकने वाला फोर्स, ठीक है। और चलाने वाला फोर्स कौन सा है? ये बनेगा बेटा इसका चलाने वाला फोर्स विच इज 80 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, आराम से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बेटा। दैट इज चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ब्लॉक। हाउ मच इज चलाने वाला फोर्स? दैट इज 32। व्हाट अबाउट रोकने वाला फोर्स? दैट इज सॉरी व्हाट इज दिस? वेट अ मोमेंट। दिस चलाने वाला फोर्स जो है बेटा वो ये है 80 न्यूटन। तो वो कितना बन गया बेटा? 80 माइनस 32 डिवाइड बाय इसका मास क्या बेटा? 10। दिस इज 48 डिवाइड बाय 10 कम्स आउट बी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू एग्जांपल्स, यहां पे ध्यान रखिए बेटा, इफ यू कंपेयर दिस इज वी आर पुलिंग, दिस इज पुलिंग फोर्स। जो ये वाला फोर्स है बेटा इट इज पुलिंग इन नेचर। एक्सेलरेशन क्या निकला? 7.2। फोर्स बिल्कुल सेम था, मास भी सेम था, फ्रिक्शन भी सेम था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहां पे देख लो बेटा, एक्सेलरेशन क्या निकला? 4.8। दिस फोर्स इज व्हाट? इट्स अ पुशिंग इन नेचर, दिस इज अ पुश, ठीक है बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाज सेम, मास वाज सेम, द ब्लॉक वाज सेम, फोर्स वाज सेम, बट द एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी लेस व्हिच इज 4.2। इट मींस दैट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दैट इज इट इज ऑलवेज इजी टू पुल अ ब्लॉक एंड इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू पुश अ ब्लॉक, ठीक है बेटा। ऑलवेज इजी टू पुल अ ब्लॉक एंड डिफिकल्ट टू पुश अ ब्लॉक, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बेटा। तो हमने यहां पे क्या किया? पुल वर्सेस पुश, ठीक। दिस इज अ पुलिंग फोर्स। अब इस F के कितने कंपोनेंट्स हैं? दिस इज थीटा, F cos थीटा, F sin थीटा। ऊपर की दिशा में नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की दिशा में वेट, पीछे की दिशा में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय m। यहां पर देख लो बेटा, सो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। व्हाट डज दैट मीन? n प्लस F sin थीटा किसके बराबर आएगा? mg के बराबर। तो वहां से निकलेगा बेटा n इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा। फ्रिक्शन इज इक्वल म्यू इनटू n का वैल्यू यहां पे पुट कर लो। एक्सेलरेशन हो गया बेटा, दिस इज चलाने वाला फोर्स, ये बनेगा बेटा चलाने वाला फोर्स। और ये वाला फोर्स क्या है बेटा? इसमें रोकने वाला फोर्स। सो दैट्स इक्वल F cos थीटा माइनस दिस फ्रिक्शन विच इज इक्वल म्यू इनटू mg माइनस F sin थीटा डिवाइडेड बाय m, ठीक है। इन दिस केस दिस फोर्स इज पुशिंग इन नेचर एट एन एंगल ऑफ थीटा। कंडीशंस आर सेम, सिर्फ ये डिफरेंस है बेटा, जो ये वाला फोर्स है इट इज पुलिंग इन नेचर, और जो ये वाला फोर्स है बेटा इट इज ए पुश ऑन द ब्लॉक। क्लियर? नाउ दिस इज F cos थीटा, नीचे की दिशा में होगा F sin थीटा, नॉर्मल इज देयर, वेट इज देयर, पीछे की दिशा में फ्रिक्शन, it will accelerate in the forward direction, this will also accelerate in the forward direction so that the force of friction is backwards। अब देख लो बेटा, upward force is normal, नीचे की दिशा में है mg और F sin थीटा, तो नॉर्मल आएगा बेटा mg प्लस F sin थीटा, ठीक। फ्रिक्शन आएगा बेटा इसके बराबर, एक्सेलरेशन देख लीजिए, ठीक है। नाउ इफ यू कंपेयर द टू, फॉर एग्जांपल दिस इज n1, this is n2, this is f1, this is f2, this is a1, this is a2। can we write like this, that this n2 is greater than n1, that means the normal reaction during the pushing is greater than normal reaction during the pulling, ठीक है। तो force of friction f2 is also greater than f1, ठीक है। acceleration a2 is less than acceleration A1। तो इसका मतलब बेटा ये है that it's always easy to pull a block and difficult to push a block। That's the important conclusion that follows from here। वो यहां पर मैंने लिखा बेटा, normal reaction during pulling is less than the normal reaction during pushing, force of friction during pulling is less than the force of friction during pushing, and acceleration during pulling is greater than the acceleration during pushing। hence it is easy to pull, क्या लिखा बेटा यहां पे मैंने, hence it is easy to pull a long roller or block than to push it। It's always difficult to push and easy to pull। So I'm sure that this important example is crystal clear। Okay, next देख लो बेटा, again an important question, थोड़ा सा इसमें है काइनेमेटिक्स और थोड़ा सा एनालिम है। ओके, ठीक है।
Calculate stopping distance and stopping time. That's the next question we have. This is a block of mass m. It is moving with some initial velocity that's equal to u. ठीक है. So coefficient of friction that's equal to mu. ठीक. So it is like that rough surface. ये बेटा ये जो surface है it is something like this. It's a rough surface. ठीक. Now what I am doing is this. I have given some push, some initial kick to the block. Okay, तो initially इसकी कुछ velocity होगी. Then because of the force of friction, it will retard with the time, and finally it will come to rest. Finally it will come to rest. हमें क्या निकालना है बेटा? We have to calculate what is the stopping distance. यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है. What is the stopping distance and what is the stopping time? This S and T we have to calculate. यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा. ठीक है, इजीली वी कैन डू इट, इजीली वी कैन डू इट. अगर आपको बेटा याद होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस वो होता है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है ना, तो वो मैं लिख के रखूंगा बेटा एक्स ए पार्ट. स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. ये इक्वेशन कहां से? ये इक्वेशन यहां से, दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. सही है बेटा. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज u, एक्सेलरेशन इट इज माइनस a बिकॉज़ इट इज रिटार्डेशन. वहां से s निकलेगा सीधे u स्क्वायर बाय 2a. ठीक है, अब यहां पे एक्सेलरेशन जो है बेटा, यहां पे ध्यान रख लो बेटा, पीछे की दिशा में एक फोर्स है व्हाट वी कॉल एज फ्रिक्शन, म्यू n. यहां पे n किसके बराबर है? mg के बराबर. क्लियर और नॉट? ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, बिकॉज़ देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस. नॉर्मल एंड वेट दे विल कैंसिल ईच अदर. तो फ्रिक्शन किसके बराबर है बेटा? म्यू mg डिवाइडेड बाय व्हाट? m. m एंड m कैंसिल्स, ये आएगा बेटा म्यू g. दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर आएगा बेटा? हमारा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a के बदले हमने क्या लिखा? म्यू इनटू g. दिस इज म्यू एंड दिस इज u. ठीक है बेटा. नाउ b पार्ट इज दैट यू हैड कैलकुलेट स्टॉपिंग टाइम. स्टॉपिंग टाइम आएगा बेटा u बाय a. कहां से? इस इक्वेशन से v इक्वल्स टू u प्लस at. फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, u यहां जाएगा बनेगा माइनस, माइनस एंड माइनस विल कैंसिल, t आएगा बेटा u बाई a. इस a का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? u डिवाइडेड बाय व्हाट? म्यू इनटू g. सो दिस इज द स्टॉपिंग टाइम ऑफ द व्हीकल और ऑफ द ब्लॉक. क्लियर और नॉट? स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाय 2a, a के बदले म्यू g लगा लो. स्टॉपिंग टाइम u बाई a के बदले म्यू g लगा लो. और अब देखोगे बेटा द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी रिपीट एवरी नाउ एंड देन. हो गया क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देख लो. टाइप सेकंड हमने वहां पर भी पढ़ा था, दैट इज ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. यहां पे है बेटा ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन. क्लियर? सो देयर विल बी फोर्सेस and in addition to those normal forces there will be one more force and that's force of friction. तो देख लीजिए बेटा, this is our block which is placed on the rough inclined plane. यहां पे जो coefficient of friction है for example that's equal to mu. ठीक, तो सबसे पहले बोलो बेटा इस ब्लॉक पर कितने फोर्स होंगे? सर वहां पे नॉर्मल होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, और होगा वहां पे वेट, एंड नंबर थर्ड देयर विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज वेल. द रीजन इज दैट द सरफेस आर नाउ रफ. ठीक है बेटा, सो देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कांटेक्ट. दिस इज प्लेन ऑफ कांटेक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से होगा. ठीक है, वेट इज डाउनवर्ड्स. इस वेट के दो कंपोनेंट्स हमने किए, mg cos and mg sin थीटा. फ्रिक्शन होगा बेटा इन दिस डायरेक्शन बिकॉज़ इट एक्सेलरेटिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है बेटा? यू विल हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट द बेस ऑफ द वेज एंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. तो आराम से हम कर सकते बेटा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देख लो बेटा, जो ये mg sin थीटा है ये बनेगा इसमें बेटा चलाने वाला फोर्स. जो ये फ्रिक्शन है विच इज म्यू m, ये बनेगा इसमें बेटा रोकने वाला फोर्स. ठीक है ना? तो देख लीजिए कॉन्सेंट्रेट हियर ए पार्ट. ठीक, एक्सेलरेशन जो है बेटा दैट विल बी इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक. बताइए बेटा इसमें चलाने वाला फोर्स कितना है? सर वो तो है mg sin थीटा. हाँ लिखा हमने mg sin थीटा. बताइए इसमें रोकने वाला फोर्स क्या है? दैट इज म्यू इंटू m. म्यू इंटू m यहां पे मैं लिख के रखूंगा बेटा f इज इक्वल टू म्यू m वेयर दिस n इज इन टर्म इक्वल टू mg cos थीटा. तो ये आएगा बेटा म्यू mg cos थीटा विल बी द फ्रिक्शन, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg cos के बराबर. तो यहां पे क्या आएगा बेटा? माइनस म्यू mg cos theta divided by what? Divided by m. This m and m is going to cancel. यहां से आप g कॉमन ले सकते हो बेटा. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? g multiplied by what? sin theta minus mu cos theta. This is the acceleration of the block on the rough inclined plane. ठीक है बेटा. Let me write down here an important point, that is acceleration for the rough inclined plane is equal to what? g multiplied by
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बताइए बेटा अगर ये ब्लॉक होगा स्मूथ और फॉर एग्जांपल दिए सरफेस आर स्मूथ, तो वहां पे म्यू का वैल्यू क्या होगा सर? वहां पे तो म्यू का वैल्यू 0 होगा। लेट सी इफ म्यू इज इक्वल टू 0, तब ये स्मूथ होगा, इट इज जी, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये बनेगा बेटा जी साइन थीटा। ठीक है ना, एज एक्सपेक्टेड। ठीक, acceleration for the smooth is g sin theta, acceleration for the rough is g into sin theta minus mu cos theta, and it's obvious that when the block is placed on the smooth inclined plane it will move faster, and when it's placed on the rough inclined plane it will move slower। तो आप देख लो बेटा acceleration for the smooth is greater than the acceleration for the rough, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा that acceleration for the rough is less than the acceleration for the smooth inclined plane। ठीक, अब ये इक्वेशन आपको रात के 2 बजे भी याद होनी चाहिए, that acceleration is equal to what, g into sin theta minus mu cos theta। अब क्वेश्चन ये है बेटा, यहां पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, लेट्स ट्राई टू डू दैट। देखो बेटा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है, दिस इज अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है थीटा, यहां पे एक ब्लॉक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये नीचे आएगा, फाइनली यहां पे पहुंचेगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, यहां पे म्यू दिया गया है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब और एक तो v निकालना है और यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा वो भी आपको निकालना है, दिस इज गिवन दैट्स इक्वल टू f। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आपको v निकालना है कौन से इक्वेशन यूज करोगे बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0 है, तो v किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 2as। बताइए बेटा इस a क्या वैल्यू में क्या पुट करूंगा, 2 इंटू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय s। ठीक है ना बेटा, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। सर ये स्मूथ पे क्या होता था, स्मूथ पे ये होगा बेटा, स्मूथ मींस दैट म्यू इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 बनेगी, तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा अंडर रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय s। एंड देख लो बेटा जो ये वेलोसिटी है फॉर द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, it is greater than for the rough inclined plane as expected। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, because when they are smooth inclined plane तो जो ब्लॉक है बेटा ये तेज चलेगा, तो नीचे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे बेस पे वो वेलोसिटी ज्यादा होगी और रफ पे ये वेलोसिटी कम होगी। ठीक है ना। C is that you want to calculate time taken by the block to go from point A to point B from this top of the inclined plane to the base of inclined plane। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है काइनेमैटिक्स, S equal to ut plus 1/2 at स्क्वायर। व्हाट अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, सर वो तो 0 है, तो टाइम निकालना है, तो t किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय a, अंडर रूट ऑफ 2s। बताइए बेटा a किसके बराबर, g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस व्हाट, म्यू कॉस थीटा। क्लियर बेटा, सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर द रफ इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये रफ होगा, इफ फॉर एग्जांपल इट इज स्मूथ, बताइए बेटा ts किसके बराबर आएगा, म्यू 0 होगा, अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय ये 0 है, तो नीचे आएगा बेटा g sin थीटा। नाउ सी दैट इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब दैट दिस t or is greater than ts as expected, because on the rough inclined plane it will move with a slower speed, ये धीरे धीरे चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है बेटा, so I am sure that it is now clear to you what is the acceleration। let me summarize it here, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपको याद होनी चाहिए, लेट मी राइट इट हियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, नंबर 1। नंबर सेकंड इज जो इसके बाद आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2as, a के बदले g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय s, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। नंबर थर्ड, टाइम टेकन अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइड बाय a के बदले क्या लिखेंगे, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ऑलराइट, so this is the acceleration of the block on the rough inclined plane, this is the velocity of the block on the rough inclined plane, and this is the time taken by the block to slide down the rough inclined plane। ठीक है बेटा, okay, so let's go ahead। देख लीजिए बेटा, these are some 3 important results continuously they are asked in the competitive exam। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये बेटा, if as is equal n times ar, obviously acceleration for the smooth inclined plane is greater than the acceleration for the rough inclined plane, it is given its n times in general। अब ये ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है बेटा, it is 2 times ar, 3 times ar, 4 times ar। क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट म्यू, तो म्यू इसके बराबर होता है tan थीटा into 1 - 1/n। अब इस
रिजल्ट को हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दिस रिजल्ट, और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। सो इफ BS इज इक्वल n टाइम्स VR, TR इज इक्वल n टाइम्स TS, तब म्यू ये होगा। BS इज ग्रेटर देन VR, TR इज ग्रेटर देन TS, इसलिए मैंने लिखा n। ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस, देख लो बेटा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है इफ velocity on the smooth inclined plane is suppose 2 times the velocity on the rough inclined plane, ठीक है बेटा, twice it is, calculate mu, आपको क्या निकालना है, कमा theta is given to you, for example the theta is given to you, it is 45 degree, so calculate coefficient of friction of the rough surface। ठीक है, तो इक्वेशन सिंपली लगा लो बेटा, BS is equal to n टाइम्स, तो n किसके बराबर है, तो इसका सोल्यूशन देख लो बेटा, सी द सोल्यूशन, यहां पे ध्यान रख लो बेटा। तो n किसके बराबर है, n इज गिवन दैट्स इक्वल टू 2, तो म्यू किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू tan थीटा इनटू 1 माइनस 1 बाई m स्क्वायर। सर सही है, तो म्यू आएगा बेटा tan थीटा tan 45 डिग्री। बताइए बेटा tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, सर वो तो 1 के बराबर होता है। 1 माइनस 1 बाई n किसके बराबर, 2 स्क्वायर इज 4, दिस इज 1, 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3/4, यहां लिखेंगे बेटा 0.75, तो ये इसका आंसर रहा। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया। सो इट विल बी गिवन लाइक दिस एंड यू आर सपोज कैलकुलेट म्यू, तो ये रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, ओके लेट्स मूव अहेड। देखो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट्स व्हाट वी कॉल एज द एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है बेटा, ओके देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0। अब आप धीरे धीरे क्या करोगे बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओगे। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल इंक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दैट एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज दैट एंगल, दैट मैक्सिमम एंगल एट विच, मिनिमम एंगल रादर, ओके मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द ब्लॉक इज एट रेस्ट। वहां पे ब्लॉक इट विल बी एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, अगर थोड़ा सा वहां से इंक्रीज करेंगे बेटा तो क्या होगा, ब्लॉक विल नॉट बी एट रेस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा एंगल ये है वायर द ब्लॉक इज एट रेस्ट। जब ब्लॉक रेस्ट पे होगा, व्हेन द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, तो बताइए बेटा इस पे नेट फोर्स कितना होगा, सर वो तो 0 होगा। नेट फोर्स 0 मींस दैट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स एंड राइटवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। तो सिंपल सी बात है बेटा, इस पे 3 फोर्सेस होंगे, नीचे की दिशा में mg होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। mg के कितने कंपोनेंट्स, सर वहां 2 कंपोनेंट्स, mg cos अल्फा, mg sin अल्फा। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा, mg cos अल्फा के बराबर। तो फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा, म्यू n। तो यहां मैं लिखूंगा बेटा normal will be equal to mg cos alpha, which implies that friction will be equal to mu n, that is mu mg cos alpha। तो यहां पे देखिए बेटा आप, डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अप द इंक्लाइनेड फोर्स। ठीक है बेटा, ये वाला फोर्स विल बी इक्वल टू ये वाला फोर्स, mg sin alpha इक्वल टू दिस mg and mg goes, sin by cos आएगा tan alpha इक्वल टू म्यू, सो अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ म्यू। हमने पढ़ा था बेटा एक बार, अगर आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था दैट थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। इस वक्त हमने पढ़ा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो इसका मतलब है बेटा दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर सेम। क्लियर और नॉट, समझ में आया बेटा। अगर एंगल अल्फा, suppose that if the angle is less than alpha, in that very case block will be at rest. If it is greater than alpha, block will not be at rest, it will slide down the inclined plane। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, that alpha is equal to tan inverse of mu। देख लीजिए बेटा, this question has been asked in the NEET 2023 and let's try to do it। This is a block placed on the rough inclined plane, क्योंकि वहां पे म्यू दिया गया है, किसके बराबर है, 1/√3। एंगल इज गिवन, व्हाट इज दैट, 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बेटा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। यहां पे चलाने वाला फोर्स कौन सा होगा, कंपोनेंट ऑफ वेट विच इज mg sin थीटा। रोकने वाला फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन विच विल बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो बताइए बेटा नीचे की दिशा में कौन सा फोर्स है, दैट इज सर mg sin थीटा। बोलो बेटा m किसके बराबर, दैट इज 2 into 10 is 20, sin 30 is 1/2, तो ये आएगा बेटा 10 न्यूटन। सर हाँ ये तो आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। ऊपर की दिशा में कौन सा फोर्स होगा बेटा, फ्रिक्शन, दैट इज म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। सो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पे mg sin थीटा मैं लिखूंगा, विच इज चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। बोलो बेटा वो कितना निकला, वो निकला
10 न्यूटन। रोकने वाला फोर्स इसमें कौन सा है सर, वो तो फ्रिक्शन है, और वो किसके बराबर होता है, म्यू mg cos थीटा। बताइए म्यू का वैल्यू क्या है, 1/√3, m इज 2, g इज 10, cos 30, बोलो बेटा cos 30 किसके बराबर होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 will cancel, √3 and √3 will cancel। तो मुझे लग रहा है बेटा फ्रिक्शन यहां पे जो आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। कितना आएगा बेटा, 10 न्यूटन। अब आप देख लो बेटा, चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू रोकने वाला फोर्स, तो इसका मतलब जो इसकी एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। देयर इज वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, वो ये है बेटा, वो ये है, आप देख लीजिए म्यू किसके बराबर है, व्हाट्स म्यू इक्वल टू, सर वो तो है 1/√3। बताइए बेटा आप वहां पे tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, सर वो भी होता है 1/√3। तो इसका मतलब जो ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, इट्स एंगल ऑफ रिपोज, इट्स व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। 30 डिग्री इज एंगल ऑफ रिपोज, 30 डिग्री इज एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो एंगल ऑफ रिपोज पे क्या होता है, द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड डाउन बट इट डज नॉट स्लाइड डाउन, इट इज एट रेस्ट। जब ये एंगल ऑफ रिपोज है तो इसका मतलब ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट का मतलब है इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस हाउ यू कैन डू, हाउ यू वांट टू डू इट। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, देख लीजिए बेटा और एक क्वेश्चन है दैट हैज बीन आस्क्ड इन द नीट 2013। क्वेश्चन ये है बेटा, दिस इज हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, सपोज डिस्टेंस f, दिस इज अनदर हाफ, सपोज द डिस्टेंस इज s। यहां पे इसकी वेलोसिटी है बेटा 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। दिस इज स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन जो ये वाला है बेटा ये थोड़ा सा रफ है, ऐसे में दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो पहले इसकी वेलोसिटी है 0, इट विल एक्सेलरेट, यहां पे इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v है, देन इट विल रिटार्ड एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट। आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस म्यू। क्या हम कर सकते हैं, हाँ आराम से कर सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू as, 2 बार लगा लो बेटा, इक्वेट कर लो तो वहां से म्यू का वैल्यू आएगा। अगर आप यार डायरेक्टली रखोगे ज्यादा अच्छा है बेटा, म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है बेटा, म्यू इज इक्वल टू 2 tan, कैसे, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, 2 बार इक्वेशन लगानी है बेटा, वहां से आएगा म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। फॉर एग्जांपल फॉर दिस एंड देन फॉर दिस। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो बेटा, तो यहां रिजल्ट ही याद रख लो, दैट इज म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। आगे चलते हैं, नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा दैट इज टाइप 3, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। क्या हमने ये पढ़ा है, हाँ हमने ये पढ़ा है, कहां पे, NLM फर्स्ट में। ठीक, लेकिन वहां पे ये होता था बेटा, द सरफेस आर स्मूथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। इन दिस वेरी केस द सरफेसेस विल बी रफ where the coefficient of friction will not be equal to 0 and that will be given to you. Again there is a technique to solve this problem, the same technique, acceleration is equal to चलाने वाला force minus रोकने वाला force divided by total mass, and if you want to calculate tension apply F equal to ma on one block, जिस तरह हमने कल किया था। देख लीजिए बेटा, now have a look, देखो बेटा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M so that the system is at rest। यहां पे म्यू दिया गया है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, सिस्टम इज एट रेस्ट मींस नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 मींस चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू रोकने वाला फोर्स। वेट इसका नीचे की दिशा में है mg, यही बनेगा इसका चलाने वाला फोर्स। सर ये तो सही है, ऊपर की दिशा में टेंशन होगा, यहां पर भी टेंशन होगा, पीछे की दिशा में एक फोर्स होगा फ्रिक्शन, म्यू इंटू n विच इज म्यू mg, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है बेटा mg के बराबर। क्लियर, और ये फोर्स क्या बनेगा बेटा इसका, ये बनेगा रोकने वाला फोर्स। ठीक है, नाउ द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट सिंपली मींस दैट चलाने वाला फोर्स किसके बराबर होगा, रोकने वाला फोर्स के बराबर। तो चलाने वाला फोर्स कितना है सर, वो तो है mg, रोकने वाला फोर्स कितना, म्यू स्मॉल m इंटू g, g एंड g कैंसिल होगा, कैपिटल M आपको निकालना था, म्यू इंटू स्मॉल m निकला इसका वैल्यू। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, सो इट मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू स्मॉल m। इफ इट इज वैल्यू, तो यहां पे इसका मतलब यह है बेटा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इफ इट इज वैल्यू इज लेस और इक्वल टू म्यू m, इन दैट वेरी केस सिस्टम जो होगा इट विल बी एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, या इसकी एक्सेलरेशन है 0। if for example this m becomes greater than mu m, तब क्या होगा बेटा, इसकी एक्सेलरेशन जो है that will not be equal to 0, तब इसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, तो कम से ज्यादा इसका वैल्यू क्या होगा, mu into m। क्लियर, एंड अगर आपको इसी क्वेश्चन में टेंशन निकालना है, so simply tension will be equal to mg। if you want to calculate tension,
तो टेंशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर, बिकॉज द सिस्टम इज एट रेस्ट, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, डाउनवर्ड फोर्स। आगे चलते हैं बेटा, देख लो, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द AIPMT 2012। फिर से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, नीचे की दिशा में mg, सर ये तो सही है, पीछे की दिशा में फ्रिक्शन, रोकने वाला फोर्स, म्यू इंटू n विच इज म्यू mg। ठीक है, एक्सेलरेशन 1 मिनट में आप कर सकते हो बेटा, दैट इज चलाने वाला फोर्स माइनस व्हाट, रोकने वाला फोर्स, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है बेटा, बताइए इसमें चलाने वाला फोर्स क्या है, दैट इज द वेट ऑफ दिस, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज m मल्टीप्लाइड बाय g। व्हाट अबाउट रोकने वाला फोर्स, दैट इज म्यू mg डिवाइड बाय टोटल मास, इसका क्या है बेटा, m प्लस m, दैट इज 2 इंटू m। m यहां से कॉमन आएगा, इसके साथ कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय 2। तो असल में आपको एक्सेलरेशन ही निकालना था, जो नीट में आया था क्वेश्चन, AIPMT 2012 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट टेंशन, आप आराम से टेंशन भी निकाल सकते हो बेटा। टेंशन इसमें T है, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में है, तो इस पे लगा लो बेटा F इक्वल टू ma, तो आराम से आप टेंशन निकालोगे। ठीक है, लेकिन जो AIPMT 2012 में क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। देख लीजिए बेटा, अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द AIPMT 2014 व्हिच इज नाउ नीट। ठीक, आपको क्या निकालना बेटा इसमें, अगेन यू विल हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। बताइए बेटा, जो ये ब्लॉक है किस दिशा में एक्सेलरेट करेगा, नीचे की दिशा में, ये वाला ब्लॉक आगे की दिशा में, ये वाला ब्लॉक आगे की दिशा में। ठीक है बेटा, डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स होगा, वो होगा mg। ठीक है, नाउ इफ दिस ब्लॉक स्लाइड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देयर विल बी फ्रिक्शन। इफ दिस ब्लॉक स्लाइड्स फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स देयर विल बी फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू mg। क्लियर और नॉट। तो इसमें जो इस प्रॉब्लम में जो चलाने वाला फोर्स बनेगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू g, और जो इसमें रोकने वाला फोर्स बनेगा दैट विल बी इक्वल f प्लस f। यहां पर भी फ्रिक्शन है, यहां पर भी फ्रिक्शन है, तो वो आएगा बेटा 2 टाइम्स म्यू mg। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हो बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सर ये तो सही है, चलाने वाला फोर्स किसके बराबर है, वो है mg। व्हाट अबाउट रोकने वाला फोर्स, 2 म्यू mg। व्हाट इज द टोटल मास, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, 1 2 एंड 3। तो टोटल मास इसका क्या आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 3m। m एंड m विल कैंसल, जब ये कैंसल होगा बेटा तो न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस 2 म्यू g कॉमन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा बेटा 3। दिस इज द एक्सेलरेशन, और exactly this was the question that was asked in the AIPMT 2014। ठीक है ना बेटा, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। देख लीजिए बेटा, दिस ए क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो आराम से आप क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, देख लो, दिस इज 8। तो बताइए नीचे की दिशा में कितना फोर्स है, 8 टाइम्स r 80 न्यूटन। सर तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा विद द एक्सेलरेशन a, ऊपर की दिशा में एक फोर्स है दैट इज टेंशन स्प्रिंग। सर ये तो सही है। नाउ यहां पे टेंशन है बेटा, ठीक, सो दिस विल एक्सेलरेट अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब यहां पे नीचे की दिशा में, यहां इस दिशा में दो फोर्स होंगे, कंपोनेंट ऑफ वेट और फ्रिक्शन। कंपोनेंट ऑफ वेट कितना होगा, mg sin थीटा। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू n किसके बराबर, mg cos थीटा। क्लियर और नॉट। सो लेट्स कैलकुलेट एक्सेलरेशन। दीज टू विल बी चलाने वाला फोर्स, दिस विल बी रोकने वाला फोर्स। तो एक्सेलरेशन देख लीजिए बेटा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू दिस 80 न्यूटन। ठीक है बेटा, यहां पहले मैं एक काम करूंगा बेटा, लेट मी राइट डाउन हियर द चलाने वाला फोर्स एंड द रोकने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स इज सिंपली व्हाट, दैट्स इक्वल टू 80 न्यूटन। रोकने वाला फोर्स वहां पे दो है बेटा, कौन कौन सा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ठीक है ना बेटा, देख लीजिए किसके बराबर आएगा, m किसके बराबर है, दैट इज 2 into 10 is 20 into sin 37 किसके बराबर होता है, 3/5। म्यू इज 0.1, then mg is 2 into 10 is 20, cos 37 4/5। लेट्स कैलकुलेट दिस, 5 1 5 4 4 3 आएगा बेटा 12। ठीक है ना, माइनस दिस विल बी 5 1 5 4 4 4 16, तो ये आएगा बेटा 16 into 0.1 is 1.6, तो ये जो आएगा इट विल बी 10.4। ठीक है बेटा, 10.4 विल बी व्हाट, दिस विल बी हियर, ओके, दिस विल बी वेट अ मोमेंट, यहां पे जो है बेटा दिस इज प्लस
सॉरी दिस इज प्लस, तो ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी हियर 12 + 1 दैट्स इक्वल 13.6 न्यूटन आएगा बेटा रोकने वाला फोर्स। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आपको निकालना है, सो दिस रोकने वाला फोर्स, एक्सेलरेशन विल बी चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बताइए बेटा इसमें चलाने वाला फोर्स कितना है, सर वो तो 80 है। बताइए बेटा रोकने वाला फोर्स 13.6, टोटल मास इसका बेटा 8 + 2 दैट्स इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, 80 - 10 is 70, 70 - 3 is 67, तो यह आएगा बेटा 66.4 डिवाइडेड बाय 10, अप्रोक्सीमेटली 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। तो हमने निकाला बेटा एक्सेलरेशन। क्लियर? एंड इफ यू वांट कैलकुलेट टेंशन, इसके लिए F = ma लगा लो। फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉक ए, ठीक है बेटा, तो देख लो बेटा दिस इज बी पार्ट, दिस इज ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट देख लो बेटा, F = ma किसके लिए, फॉर द ब्लॉक ए, ए के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा F किसके बराबर बेटा, दैट्स 80 - t, 80 - t, m × a क्या निकला बेटा, दैट इज 6.6, इट विल बी इक्वल टू 8 × 6.6, यहां से t का वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, हैव अ लुक। अब ये वाली एग्जांपल आप देख लो बेटा, दिस इज टाइप 4 दैट इज pseudo force and friction। So important example question has been asked in the NEET 2023। देखो बेटा दिस ए कार, इट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन a। यहां पे एक ब्लॉक है, इसका म्यू दिया गया है दैट इज 0.15। ठीक है, कैलकुलेट a max so that the block is at rest with respect to the car। It's at rest with respect to car, or that means this block and the car they are moving combinedly, these two they are moving combinedly। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। देखो बेटा नाउ दिस इज ऑब्जर्वर, इज ही इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, सर वो तो नॉन इनर्शियल हैं। बताइए बेटा इस ब्लॉक पर कितने फोर्स हैं, ऊपर की दिशा में कौन सा होगा, नॉर्मल होगा, नीचे की दिशा में कौन सा फोर्स होगा, mg होगा। नाउ इट्स एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पीछे की दिशा में एक फोर्स होगा दैट इज pseudo force m multiplied by a। now this block it tends to slide in the backward direction, tends to slide in the backward direction, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो आगे की दिशा में होगा। क्लियर? एंड दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू m। क्लियर? आपको क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, ये a का वैल्यू आपको निकालना है। देख लीजिए बेटा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव जनरलाइज्ड इक्वेशन, देन एट द एंड हम ये म्यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देख लो बेटा, कंसंट्रेट हियर। बताइए बेटा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, सर वो तो mg के बराबर है, n is equal to what, mg। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो होता है दैट्स म्यू इनटू n, वो किसके बराबर आएगा, म्यू इनटू mg। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो बेटा सर, अब ये ब्लॉक है बेटा, इट इज एट रेस्ट। अब जब ये रेस्ट पे होगा तो आगे वाला फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, पीछे वाला फोर्स। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा बेटा, pseudo force के बराबर। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू mg। pseudo force का वैल्यू क्या है बेटा, m into a, m and m will cancel, a क्या निकला बेटा, म्यू g। so this is the maximum acceleration that the car can have। ठीक है, या इसका मतलब है बेटा जो एक्सेलरेशन है इट मस्ट बी आइदर लेस और इक्वल टू म्यू जी, या तो इसके बराबर या इससे कम। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो जाएगी देन इन दैट वेरी केस ma will become greater than the friction and it will slide in the backward direction। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a max। बताइए बेटा म्यू किसके बराबर है, दैट इज 0.15 into 10। 0.15 into 10 is what, 1.5 meter per second square। This is the answer to the problem that acceleration is equal to what, 1.5 meter per second square। Question has been asked in the NEET 2023। So I'm sure that this question is also clear to you। देख लीजिए बेटा और एक क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2 आस्क्ड इन AIPMT 2010। इट इज लाइक दिस, दिस इज अ कार एंड दिस इज अ ब्लॉक एंड बोथ आर मूविंग कंबाइनली, अगेन दे आर मूविंग कंबाइनली, ये साथ साथ चल रहे हैं बेटा। व्हेन दे आर मूविंग कंबाइनली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें इस वक्त निकालना है बेटा कम से कम कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार सो दैट दिस ब्लॉक इट विल नॉट फॉल डाउन। ठीक, फिर से देखो बेटा इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स होगा, सर सबसे पहले तो वेट होगा नीचे की दिशा में, हाँ ये भी ठीक है। इसके बाद होगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन in the forward direction because that's always perpendicular to plane of contact। then this block it tends to slide in the downward direction, when it tends to slide downwards तो friction होगा बेटा upwards। तो मैंने आपको बोला था that friction it's not necessary, it is parallel to the opposite direction of motion। यहां पे देख लो आप, motion is towards right, friction is upwards।
ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि क्या दैट द फ्रिक्शन विल बी व्हाट, that the friction will be opposed to the direction of motion, वो जरूरी नहीं है. Now in addition to these forces there will be one more force what's called as pseudo force. बताए बेटा ये है ना नॉन इनर्शियल, अगर ये नॉन इनर्शियल है तो pseudo force होगा, कहां होगा, पीछे की दिशा में, because this observer is accelerating towards right, so pseudo force will be towards left. तो इसमें pseudo force जो है वो किसके बराबर है, that is m multiplied by a. Now with respect to this observer, this is at rest, so ऊपर वाला force will be equal to नीचे वाला force, F will be equal to mg. ठीक है बेटा, फिर जो F है इसी के बदले हम लिखेंगे mu into n will be equal to mg. सही है, because friction by definition is mu into n. Now आगे वाला फोर्स विल बी इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, तो ये m किसके बराबर आएगा, ये आएगा ma के बराबर इज इक्वल टू mg. दिस m एंड दिस m इज गोइंग टू कैंसल. एक्सेलरेशन का जो मिनिमम कम से कम वैल्यू निकला वो क्या निकला, g डिवाइडेड बाय म्यू. तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, इससे कम एक्सेलरेशन नहीं चलेगी. इफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस देन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड. इफ द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन दिस it is at rest, it will not slide down with rest of the car. लेकिन जब एक्सेलरेशन इससे कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, this block will simply fall down. ठीक, ओके ग्रेट. आगे देख लो बेटा, rope on the table. ओके, so again important question ये आता है बेटा इसमें that a rope is placed on the table. Calculate the minimum length, कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए on the table so that it does not slide down. ठीक, या ज्यादा से ज्यादा इसकी लेंथ हैंगिंग कितनी होनी चाहिए सो दैट इट डज नॉट स्लाइड डाउन. वो क्वेश्चन यहां पे लिखा है बेटा, कैलकुलेट मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप ऑन द टेबल सच दैट इट डज नॉट स्लाइड डाउन. मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोप ऑन द टेबल, मैक्सिमम दिस हैंगिंग फ्रॉम द टेबल सच दैट इट डज नॉट स्लाइड डाउन, इट डज नॉट स्लाइड. तो इसमें है क्या बेटा, व्हाट्स द लॉजिक, हाउ टू डू इट. देख लो बेटा, इसमें चलाने वाला फोर्स इसका वेट होगा, सर सही है. पीछे की दिशा में एक फ्रिक्शन होगा दैट इज F. दिस F विल बी इक्वल टू mg. कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लो बेटा. LH इज दिस व्हिच इज L max mu L by mu plus 1. LT is L minimum, that's L divided by mu plus 1. इन दो का सम ऑलवेज L होना चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू L अगर जब इनको ऐड करोगे. सो दिस एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई एम श्योर दैट आपको ये आएगा. ठीक है, इसके बाद वन मोर स्टैंडर्ड एग्जांपल हियर, दैट इंसेक्ट इन अ बाउल. इंसेक्ट इन ए बाउल. देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन लाइक दिस, देयर इज ए बाउल. ठीक है, अब इसके अंदर एक इंसेक्ट है एंड दैट इज एट द बेस ऑफ द बाउल. नाउ व्हाट द इंसेक्ट वांट्स टू डू इज दैट इट वांट्स टू क्लाइम द स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल एंड वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल. ठीक है, तो इस इंसेक्ट को क्या हो जाता है बेटा, इट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड देन फॉल्स डाउन. So this is the maximum angle up to which the insect can climb. तो ये थीटा आपको निकालना है. देख लीजिए बेटा, when the insect is here, जब ये इंसेक्ट यहां पे है, वेट तो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन इट इज टेंडिंग टू स्लाइड डाउन, सो फ्रिक्शन होगा बेटा अपवर्ड्स. ठीक है, mg के दो कंपोनेंट्स, ये थीटा mg cos mg sin थीटा. सर ये तो सही है, ठीक है ना. नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट दिस फ्रिक्शन, देखिए बेटा, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन इज म्यू m, सो दैट्स इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, बिकॉज़ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर. तो यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा. फ्रिक्शन किसके बराबर, म्यू mg cos थीटा mg sin थीटा. mg एंड mg विल कैंसल, अगर ये कैंसल होगा तो यहां पे म्यू बचेगा बेटा, यहां पे रहेगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. sin बाय cos किसके बराबर होता है, tan थीटा. किसके बराबर, म्यू. तो थीटा कितना आएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ म्यू. तो मुझे लग रहा है बेटा तीसरी बार हम ये क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं. नंबर वन इज दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan इनवर्स ऑफ म्यू. Number second, angle of repose is tan inverse of mu. Number third is that what's the maximum angle that this insect can make with the vertical is also tan inverse of mu. तो ये important result है, आप याद रखिए बेटा इस result को. ठीक है बेटा, so we are done with the NLM second, ठीक है, which was friction, and here we are at the NLM third, which is dynamics of circular motion.
हाँ तो देख लीजिए बेटा, दिस इज डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर सम बेसिक टर्म्स लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड देन इट्स कॉल्ड व्हाट? देन इट्स कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, देन इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? द रीजन इज दैट the direction of the velocity continuously changes, and when the direction of the velocity changes that means the velocity changes because velocity is a vector quantity exactly like this। देखो बेटा, यहां पे इसकी स्पीड है बेटा v in the upward direction, यहां पे स्पीड है v, यहां पे स्पीड है v, यहां पे स्पीड है v, लेकिन velocity सेम नहीं है because at this very point velocity is upwards, at this point velocity is towards left, at this point velocity is downwards, यहां पे जो velocity है that is towards right। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी that will not be equal to zero। Why? Because when the velocity changes either by the change in magnitude or by the change in direction there will be acceleration। acceleration not equal to zero, इस पे जो net force है that will not be equal to zero। So this was just the basics of this। next देख लीजिए बेटा, what is the condition for a particle to have circular motion? what are the conditions? condition number first जो है बेटा that is there must be a net force on the particle। पहले तो एक नेट फोर्स जरूरी होना चाहिए बिकॉज जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इस पे नेट फोर्स होना ही होना चाहिए। ठीक है, द फोर्स मस्ट बी ऑलवेज perpendicular to the velocity of the particle, very important, or directed towards the center of the circle, and this force is what we call as centripetal force। this is what we call as centripetal force। फिर यहां पे मैंने लिखा बेटा centripetal force is not a new force। ठीक है बेटा, ये कोई नया फोर्स नहीं, इट्स नॉट इन एडिशन टू द न्यू नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन और टेंशन और वेट, but one of these fundamental forces can provide the necessary centripetal force depending upon the situation। like for example earth, it is revolving around the sun, वहां पे जो gravitational force है that will provide centripetal force। electron is revolving around the nucleus, the electrostatic force will provide necessary centripetal force। ठीक है बेटा, stone is whirled in a horizontal circle, the tension in the string will provide the necessary centripetal force, so on and so forth। तो वही हमने लिखा बेटा that one of the fundamental force like normal reaction or weight or friction or tension can act as the centripetal force। ठीक है बेटा, ओके। सो नेक्स्ट जो है बेटा that centripetal acceleration, these expressions you will have to memorize। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए that the centripetal acceleration जो है that is v square by r or r omega square, where this omega is called as angular velocity। it is called angular velocity and this v it is called as लीनियर वेलोसिटी। उनके दरमियान रिलेशन और ओमेगा, ये इक्वेशन हम पढ़ेंगे बेटा रोटेशनल मोशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसको m मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा mv स्क्वायर बाय r और m r ओमेगा स्क्वायर। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज दैट इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो बेटा कैसे, यहां पे ध्यान रख लो, दिस इज सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी बेटा टेंजेंशियल। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, एंगल इनके दरमियान होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर सेकंड जो है बेटा, पॉइंट नंबर सेकंड इज दैट जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन 0। ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन ओनली चेंज, यहां पे लिख लो बेटा चेंज, कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट नॉट द मैग्नीट्यूड। इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, लेट्स डू द एग्जांपल्स ऑन दिस। ठीक, तो देखो बेटा एग्जांपल नंबर 1 दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एमएस 2015 प्लस एआईपीएमटी 2015। तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन पे ध्यान रखिए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मास इज कांस्टेंट, ratio of the radii is given, you will have to calculate what's the ratio of their velocities। so simply what you will have to do is that write down the equation for the centripetal force, mv square divided by r। यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स और मास है दे आर कांस्टेंट। व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर इज दैट v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r। तो इसका मतलब जो है बेटा दैट इज v1 इज टू v2 विल बी इक्वल टू रूट r1 इज टू रूट r2। ठीक है बेटा, तो r1 बाय r2 किसके बराबर है? इट इज 6 इज टू 8, यहां लिख सकते हैं बेटा इट इज 3 इज टू 4। तो ये आएगा बेटा रूट 3 इज टू रूट 4, रूट 4 होता है 2,
तो ये आएगा बेटा √3:2 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो √3:2 इज V1:V2। सेंट्रीपिटल फोर्स F and FCP and M, they are constant. V square is directly proportional R और V is proportional under root of R, तो रेशो ये आएगा बेटा, so it will be √3:2। देख लीजिए बेटा, हॉरिजॉन्टल सर्कल 2 बार अभी तक आया है, नीट 2017 में और एमओस 2016 में। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। देखो बेटा क्वेश्चन है क्या, पहले यहां पे ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन है क्या, कॉन्सेंट्रेट हियर। दिस इज फॉर एग्जांपल अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो ऐसे बनाएंगे बेटा, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, ओके। ओके बेटा, सो दिस ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है बेटा, अब यहां पे ध्यान रखो, सो दिस ए पार्टिकल हुज मास इज इक्वल टू m, ठीक है ना, इसकी लेंथ दी गई है, दैट्स इक्वल टू L। इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सिंपली देयर इज ओनली वन फोर्स ऑन दिस एंड दैट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग। That tension in the string which is directed towards the center will provide necessary centripetal force, that's FCP। ठीक है, अब centripetal force किसके बराबर होता है, mv square divided by r। Now the length of the string will be the radius of the circle, तो वो आएगा किसके बराबर, mv square divided by L। So the tension is equal to what, mv square divided by L। ठीक है बेटा, नेट फोर्स जो इस पे होगा, आई विल राइट दैट हियर, द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विच इज आइदर इक्वल टू T और इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया था बेटा, व्हाट्स द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, दैट्स आइदर T और mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, नॉट T प्लस mv स्क्वायर बाय L, नॉट T माइनस mv स्क्वायर बाय L, नॉट 0। तो इस पे नेट फोर्स जो है बेटा, दैट्स आइदर T और mv स्क्वायर बाय L व्हिच विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, व्हीकल मूविंग अलोंग ए रफ कर्व्ड पाथ, कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ द कार। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सो दैट इट कैन मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो देख लो बेटा, कॉन्सेंट्रेट हियर, सिंपली इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे लाइक दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस, फ्रंट व्यू। ठीक है बेटा, तो दीज आर टायर्स एंड दिस द रोड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बेटा टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी फ्रिक्शन होगा बेटा टुवर्ड्स द सेंटर विच विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ये तो सही है, यहां पे लिखेंगे बेटा फ्रिक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इनटू एन, सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नॉर्मल रिएक्शन है बेटा m इनटू g, बिकॉज अपवर्ड्स देयर इज नॉर्मल रिएक्शन एंड डाउनवर्ड्स देयर इज वेट, नॉर्मल इक्वल टू वेट इज इक्वल टू m v square divided by r, m and m will cancel, v आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ mu into g into r। so this is the maximum safe velocity of the car which is under root of mu g r, और आया था बेटा क्वेश्चन AIPMT 2012 में। ठीक है, सिंपली फ्रिक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन के बदले mu m, m के बदले mg, m and m will cancel, वहां से वेलोसिटी आएगी। नेक्स्ट देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामोफोन डिस्क प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है बेटा, इट इज लाइक, देख लो बेटा, दिस इज फॉर एग्जांपल डिस्क, ठीक है ना, दिस इज डिस्क। ठीक, अच्छा अब यहां पे ध्यान रखो बेटा, नाउ एट द एज ऑफ दिस देयर इज अ कॉइन, यहां पे एक कॉइन है, कहां पे, एट द एज, यहां पे एक कॉइन है, फॉर एग्जांपल दिस द कॉइन, ठीक, whose radius is equal to radius of this given, that's equal to r। अब जो ये ग्रामोफोन डिस्क है, it is rotating with an angular velocity of omega about its axis। बताइए बेटा इस कॉइन पे कितने फोर्स होंगे, सर एक तो वहां पे नॉर्मल होगा, हाँ नॉर्मल होगा, दूसरा वहां पे वेट होगा, and this normal will be obviously equal to weight because this coin neither goes up nor goes down। now this coin it tends to skid in the outward direction because of inertia, तो होगा ये that there will be force of friction which will be directed towards the center। इस दिशा में एक फोर्स होगा बेटा which is force of friction, and this force of friction will provide necessary centripetal force। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, force is equal to centripetal। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की दो इक्वेशन हैं, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, m r ओमेगा स्क्वायर। सर यहां पे कौन सी यूज करेंगे, आप देख लो, हमें निकालना क्या है, यू विल हैव टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे बेटा m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू इंटू n इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। m के बदले क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे, ये क्या आएगा, m r ओमेगा स्क्वायर, m and m गोस
तो आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी देन द कॉइन इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है बेटा, ये वहां पे नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा आप, नीट 2019 क्वेश्चन। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए स्पिनिंग टेरर प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज रोटेटिंग सिलेंडर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, कम से कम इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सो दैट दिस ब्लॉक इट विल रिमेन स्टक टू द वॉल और इट विल नॉट फॉल डाउन। ठीक है बेटा, ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउन। तो ब्लॉक आपके पास है, बताइए इस ब्लॉक पर कितने फोर्स है, वेट तो होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, देन दिस ब्लॉक इट टेंड्स टू स्लाइड डाउन, तो ऊपर की दिशा में क्या होगा, फ्रिक्शन विच विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एम। ठीक है ना बेटा, तो देख लो यहां पे कौन सा फोर्स करेगा प्रोवाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो सबसे पहले ये लिखेंगे बेटा n इज इक्वल टू FCP। बताइए हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओमेगा, तो ये वाली इक्वेशन लिख लो बेटा mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद फ्रिक्शन किसके बराबर है बेटा, दैट इज इक्वल टू mg, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब इस फ्रिक्शन के बदले हम क्या लिखेंगे, म्यू n लिखेंगे इक्वल टू mg। अब इस n के बदले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा m और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई g। दिस m एंड m गोज, हमें निकालना है बेटा ओमेगा। तो देख लीजिए बेटा ओमेगा स्क्वायर क्या निकलेगा, दैट्स इक्वल टू g डिवाइडेड बाई म्यू इनटू r। तो इसका मतलब ओमेगा आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ g बाई म्यू r। तो कम से कम इतनी एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट द ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउन। अगर एंगुलर वेलोसिटी इससे कम हो गई सो दिस ब्लॉक इट विल नॉट रिमेन स्टक टू द वॉल, इट विल सिंपली फॉल डाउन। क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा एग्जांपल नंबर 6, कॉनिकल पेंडुलम। आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, कैलकुलेट थीटा। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। क्लियर? तो देखो बेटा दिस इज ए पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इसकी वेलोसिटी है v। तो बताइए बेटा इस पार्टिकल पर कितने फोर्सेस हैं। सर सबसे पहले तो वेट होगा, किस दिशा में, डाउनवर्ड्स होगा। इस दिशा में कौन सा फोर्स होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसी टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बी टी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बी टी साइन थीटा। क्लियर? नाउ दिस पार्टिकल इट्स नॉट मूविंग अप एंड डाउन, तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होगा, नीचे वाला फोर्स, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टी साइन थीटा आप देख लो बेटा दैट्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, सो दिस फोर्स it is directed toward center, it will provide necessary centripetal force। t sin theta is equal to FCP। FCP के बदले क्या लिखेंगे, m into v square divided by r। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। सो इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट विल गिव थीटा। सही है बेटा, t and t will cancel, sin by cos निकलेगा बेटा tan थीटा, m and m will cancel, ये आएगा बेटा v square divided by rg। तो इसका मतलब अगर आपको थीटा चाहिए वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ व्हाट, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। दिस इज द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लो बेटा ये वाला क्वेश्चन नीट 2013 में आया है बेटा। क्वेश्चन है क्या, दिस व्हीकल, inside this vehicle there is simple pendulum which is hanging। now this vehicle is moving along a circular curve। when it's moving along a circular curve तो जो ये simple pendulum होगा it will be shifted in the outward direction, away from the circular path। ये है बेटा circular path, ठीक है, ये है इसका सेंटर, ठीक, so it will be shifted away from it। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, दिस थीटा you will have to calculate। again this theta it will be again same, that is tan theta equal to a by g, a के बदले v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू g। तो थीटा जो आएगा दैट विल बी अगेन सेम एज दैट ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम व्हिच इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है बेटा, और आप ये कर सकते हो कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की दिशा में होगा बेटा mg, इस दिशा में होगा बेटा t, ऊपर की दिशा में आएगा t cos थीटा बिकॉज दिस इज थीटा, यहां से होगा बेटा t sin theta। t cos theta will be equal to mg, t sin theta will provide necessary centripetal force, divide the two you will get this answer। next देख लीजिए बेटा दैट इज मोशन ऑफ ए कार ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ब्रिज। कैलकुलेट आपको क्या करना है, you will have to calculate the normal direction। फॉर एग्जांपल दिस इज n1, दिस इज n2, तो आपको निकालना है बेटा n1 एंड n2 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, ओके।
तो देख लो बेटा, यहां पे जो नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाट N1 माइनस mg, दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो बेटा, केस फर्स्ट ए पार्ट, इसमें कॉनकेव में, दिस इज पार्ट ए विच इज कॉनकेव एंड दिस इज पार्ट बी विच इज कॉन्वेक्स। So N1 minus mg is the net force towards center. It is equal to what? mv square divided by r. तो N1 कितना निकला? ये निकला बेटा mv square divided by r plus mg। सही है ना? B part is there on the convex bridge। देखो बेटा, mg is towards center, N2 is away from center। तो यहां पे लिखेंगे बेटा mg minus N2 is equal to mv square divided by r। आपको N2 निकालना है, वहां जाएगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, तो N2 किसके बराबर निकला बेटा? mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब ये है दैट द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कॉनकेव ब्रिज विल बी ग्रेटर देन द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉनकेव इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट देख लीजिए। Okay, important result of that is banking of road and bending of cyclist. These two are important questions. तो इनके मैंने रिजल्ट डायरेक्टली लिख के रखे बेटा। नंबर फर्स्ट इज दैट इट्स अ रफ एंड लेवल्ड कर्व। ओके, लेवल्ड कर्व मींस दैट द आउटर एज एंड द इनर एज दे आर एट द सेम लेवल। तो वहां पे जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड अंडर रूट ऑफ व्हाट? म्यू और जी, इसके बराबर। ठीक है? एंड स्मूथ एंड बैंकड, दिस कॉल्ड बैंकड व्हेन द आउटर एज इज रेज्ड कंपेयर्ड द इनर एज। तो टेन थीटा जो है दैट्स वी मैक्स जो है म्यू के बदले टेन थीटा है और जी, वहीं से आप टेन थीटा निकाल सकते हो, दैट्स वी स्क्वायर बाय आर जी। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन भी आया है और ये भी आया है। ठीक है? नाउ इफ देयर इज रफ एंड बैंकड कर्व, सो दैट मींस इन दिस वेरी केस दिस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या है बेटा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। इसमें ये है म्यू इज इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे दोनों 0 नहीं है, तो वहां पे जो वी मैक्स आएगा वो आएगा ये आर जी अंडर रूट ऑफ दिस नीट 2016 क्वेश्चन। ठीक है बेटा? देख लो, जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अगेन सेम रिजल्ट, देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ डिफरेंस। ठीक है बेटा? एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। ओके, ठीक, तो ये दो प्रॉब्लम सिमिलर हैं। ओके, सो फाइनली वी आर डन विद द NLM। ठीक है? आई एम श्योर दैट इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। ओके, सो see you in the next lecture with another one shot. Okay, maybe vectors or maybe kinematics or maybe electrostatics. Okay, it will depend upon your comments. Okay, so take care of your good selves. See you next time.